Hello students, welcome to next lecture of relation and function. In this lecture, I would be discussing first exercise with more examples. I hope you must have gone through the first lecture of relation and function. I have discussed you over there what are the types of relations, right? A majority of questions are about checking of relation as reflexive, symmetric and transitive. और मैंने ये भी डिस्कस किया था कोई एक रिलेशन ऑन सेट ए है तो उसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए. Further, when do we declare a relation is reflexive? When all the elements of set A are related to itself. Symmetric, if A is related to B, then B should be related to A. Transitive, A related to B, B related to C, then A must relate to C. So these were the conditions for a relation to be reflexive, to be symmetric, and to be transitive. If a relation satisfies all three conditions of reflexive, symmetric, and transitive, that relation is called as an equivalence relation. So that is all we have gone through in the first video lecture of this exercise. Now I'm going to take examples. I've taken questions of exercise 1.1 NCERT question number 2. Please see to this. Show that the relation R in a set of real numbers defined as A comma B order pair such that first element is lesser than equal to square of second element, is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So what I need to do over here, I have to prove that the relation given over here is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, चलिए start करते हैं. Relation is on set of real numbers. So let's see for reflexive first. For reflexive, A comma A belong to R, that is according to this A comma B belong to R कब है when A is lesser than equal to B square. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए A comma A belong to R होने के लिए क्या होना पड़ेगा? A should be lesser than equal to A square. अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में तो हिंट है, आपको प्रूव कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब आपको नहीं तो पता है कि यार ये नहीं होने वाला है, अब आपको बस प्रूव करके दिखाना है. और हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था, इफ वी हैव टू प्रूव relation is not satisfying any characteristics, then we can go with an counter example method. तो बस मुझे क्या करना है, ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ के दिखाना है ऑन अ सेट ऑफ, ये रिलेशन कौन से सेट पे है, रियल नंबर्स पे. सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी अगर एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई ना करे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ नंबर इज लेसर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कि नंबर अपने स्क्वायर से छोटा है. तो उसका काउंटर क्या होगा? काउंटर ये होगा कि नंबर अपने स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा. सोच के देखिए ऐसे कौन से रियल नंबर्स हैं ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? ऐसे कौन से रियल नंबर्स हैं जो अपने स्क्वायर से बड़े होते हैं? अगर आप इस पर लॉजिकली सोचेंगे तो नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 to 1, नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 to 1, लेट्स से इक्वल्स टू 1/2 ले लिया मैंने. अब इनके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जितनी पावर इनकी इंक्रीज करोगे इनका मैग्नीट्यूड उतना छोटा होता रहेगा. आप चेक कर सकते हैं 1/2. अब मैं ये चेक करता हूं कि अगर मैं a 1/2 लेता हूं, क्या वो इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करेगा? जब आप सोच के देखिए 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर, 1/2 कितना होता है? 0.5. 1/2 का स्क्वायर 1/4 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0.25. तो बड़ा कौन सा है? यू नो दैट नाउ. सो 0.5 is greater than 0.25. That means what? 1/2 is not lesser than equal to 1/2 square. Reason is 1/2 0.5, 1/2 square is 0.25. क्योंकि 0.5 0.25 से बड़ा होता है. That's for this. It means what?
दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सेटिस्फाइंग। हमें क्या करना था, ये रिलेशन चेक करना था रियल नंबर पे कि क्या हर रियल नंबर अपने स्केट से छोटा होगा। हमने एक ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया कि इफ आई टेक a as 1/2 which is also a real number and if I apply the characteristics if I take the value of a over here, this characteristics is not satisfying, so that means the relation is not reflexive, therefore relation is not reflexive. आई होप मेरी बात क्लियर हुई। रिफ्लेक्सिव जब एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। इस क्वेश्चन में रिलेशन का क्या क्राइटेरिया है कि एलिमेंट अपने आप से रिलेट होने के लिए उसको अपने स्केल से छोटा होना पड़ेगा। तो काउंटर एग्जांपल ढूंढना था, एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो नंबर क्या हो, अपने स्केल से बड़ा हो। 0 और 1 के बीच के नंबर्स में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पावर बड़ी करने पे मैग्नीट्यूड छोटा हो जाता है, यानी कि जो नंबर होगा वो अपने स्केल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इट मींस आई हैव गिवन एन एग्जांपल a as 1/2 जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मींस ये रिलेशन इस सेट ऑफ रियल नंबर्स पे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, therefore this relation is not reflexive. Okay, now we will check for symmetric nature. For symmetric, how do we check a relation is symmetric in nature? उसके लिए चेक किया था if a related to b then b should relate to a। तो ऐसे क्वेश्चन में चेक करने के लिए आप कर लेते हैं let a b belong to this relation, यानी कि आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि a b का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ रहा है, यानी कि a रिलेटेड टू b है। बस आपको अब ये चेक करना है कि क्या b रिलेटेड टू a होगा। अगर a रिलेटेड टू b है तो इसका मतलब क्या बना, इस रिलेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो, a वुड बी लेसर देन इक्वल टू b स्क्वायर। अगर ये रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो क्या होना चाहिए, b कॉमा a शुड बिलोंग टू r, दैट इज b शुड बी लेसर देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब क्या ये रिलेशन है या नहीं है वो आपको चेक करना है। फिलहाल रादर इस क्वेश्चन में अगेन मैं वही पहले में भी बताया था कि यार इसमें तो अपने आप में हिंट दिया हुआ है कि रिलेशन नॉन सिमेट्रिक है। जब नॉन सिमेट्रिक है तो आपके लिए तो काउंटर एग्जांपल ही सफिशिएंट है। तो आप क्या करें, आप सिर्फ कोई ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढिए। काउंटर एग्जांपल कैसा ढूंढना है कि दो नंबर का पेयर ढूंढना है जो कि ए बी की फॉर्मेट में लिया है तो सेटिस्फाई करे, बट बी ए की फॉर्मेट में सेटिस्फाई ना करे। मींस व्हाट, सपोज मैं ऐसे सोच के देखता हूं, लेट एज 2 एंड बी एज लेट्स से 5। चेक करते हैं, 2 is lesser than equal to 5 square, therefore 2, 5 belong to R, right? अब होना ये चाहिए for symmetric 2, 5 belong to R, then 5, 2 should also belong to R. Let's have a check over there. 5 and 2 square. Is it so that 5 is lesser than 2 square? No, it is not. So 5 is not lesser than equal to 2 square. Therefore 5, 2 does not belong to R. Therefore the relation is not symmetric. Please see to this. It means what? हमें करना क्या है, अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है तो मुझे अपने आप ही लॉजिक से ऐसे नंबर जज करने पड़ेंगे या गेस करने पड़ेंगे कि अगर मैं उनको AB की फॉर्मेट में लेता हूं तो कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करे, बट BA होने पे यानी कि इनको रिवर्स ऑर्डर पेयर बनाने पे वो सेटिस्फाई ना करे। तो if I am able to find out such type of examples, so it means I am able to give a counter example for a relation to be non-symmetric, right? So यानी कि नॉन सिमेट्रिक हो, नॉन रिफ्लेक्सिव हो तो आपको काउंटर एग्जांपल देने और अपने लॉजिक से सोचने। सेम मैनर आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव। यस, for transitive what we used to say, let
A comma B belong to R, B comma C belong to R, then A comma C should belong to R, then only we declare the relation is transitive. अगेन वही बात है, क्वेश्चन में तो पता है ना कि नॉन ट्रांजिटिव ही है, तो क्या करना है, कोई ऐसे एबीसी के नंबर्स के ट्रिपलेट मुझे ढूंढ के बतानी है, सो दैट अगर मैं उनको एबी की फॉर्मेट में दूं देन दे शुड बिलोंग्स टू आर, बीसी की फॉर्मेट को फॉलो करता हूं देन दे शुड बिलोंग्स टू आर, बट एसी के केस को फॉलो करने पे दे शुड नॉट बिलोंग टू आर, तो आई वुड बी it means I have taken a perfect example for proving a relation as non-transitive. तो एक और फिर से ट्राई करते हैं कि एबीसी मुझे सोच के बतानी है. लेट ओके लेट A is 11. A is 11. B as 4 and C as 3. चलो चेक करते हैं क्या ये करेक्ट नंबर्स हैं. अब 11 is lesser than equal to 4 स्क्वायर, करेक्ट है. Therefore 11 comma 4 belong to R, राइट. यानी कि AB का ऑर्डर पेयर तो ले लिया हमने, अब BC का ऑर्डर पेयर लेना था. 4 is lesser than equal to 3 square. Why? Because 4 is lesser than 9. It means 4 comma 3 should belongs to R. यानी कि ABC में चेक करने के लिए तो हमने सही ढूंढ लिया. अब अगर इसको नॉन ट्रांजिटिव होना है तो A कॉमा C शुड नॉट बिलोंग टू आर, तो वो सही ढूंढा गया है कि नहीं ढूंढे गए वो नंबर आप देख लेते हैं. अब चेक करिए 11 is lesser than equal to 3 square, तो 9 होता है. 11 is not lesser than equal to 3 square, it means 11 comma 3 does not belongs to R. It means what? 11 comma 4 जब belong to R कर रहा है, 4 comma 3 belong to R कर रहा है, but 11 comma 3 अगर doesn't belongs to R है, therefore we can declare that the relation is non-transitive. I hope इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पाए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें करना चाहिए. हमें क्वेश्चन में रिलेशन को ऑब्जर्व करके अपनी तरफ से नंबर्स सोचने होते हैं कि वो उस रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई ना होने दें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया था प्रूव करो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है, यानी कि हमें पता था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब उसके लिए हमें एग्जाम्पल ढूंढने थे ऐसे नंबर्स जो कि रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई ना करें, सिमेट्रिक नेचर को सेटिस्फाई ना करें और ट्रांजिटिव नेचर को कॉरस्पॉन्डिंग सेटिस्फाई ना करें. सिमिलर मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं. शो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर. कैपिटल आर जब हमने ऐसे मेंशन किया है, इट स्टैंड फॉर रियल नंबर्स डिफाइंड एज R A comma B such that A is lesser than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Again this time जो रिलेशन है on a set of real numbers है, right? और रिलेशन में हमें क्या बोला गया है, A comma B का ऑर्डर पेयर कब आएगा, when A is lesser than equal to B. But this time I need to prove that this relation is reflexive. चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं. For reflexive, yes please, for reflexive A comma A belong to R, right? ऐसे होता है ना, A comma A belong to R for every small a belong to set of real numbers. जरा चेक कर लेते हैं, एक जरा सोच के देखिए इस रिलेशन में A comma B का ऑर्डर पेयर कब आ रहा है, जब फर्स्ट एलिमेंट इज लेसर देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट हो. तो रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेसर देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, दैट इज A should be lesser than equal to A.
ए शुड बी लेसर देन और इक्वल टू ए। अब जरा इस स्टेटमेंट को सोचिए, स्टेटमेंट को हम क्या रीड करते हैं, आइदर लेसर और इक्वल, ए इज इक्वल टू ए, ये तो स्टेटमेंट होती है, ए हमेशा ए के इक्वल होता है। तो ये दोनों चीजें थोड़ी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है, आइदर इनमें से कोई एक भी पार्ट ट्रू है तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुई, राइट। तो ए इज इक्वल टू ए होता ही है, देयरफॉर a comma a belong to R, therefore the relation is what, reflexive nature. So relation reflexive प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। आई होप आपको ये भी क्लियर है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, रिफ्लेक्सिव किसी भी प्रॉपर्टी को अगर यस प्रूव करना है तो जनरल में, अगर नो डिक्लेयर करना है तो काउंटर एग्जांपल आर सफिशिएंट। राइट नाउ जरा चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। Yes, please. For symmetric, if A comma B belong to R, then what should happen? B comma A should belong to R. This is the rule of relation to be symmetric in nature ना। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, the relation is not symmetric. Again पिछले क्वेश्चन के पॉइंट से सोच लो, जब नहीं प्रूव करना है तो how do we prove? The easiest method is by giving a counter example. तो कोई काउंटर एग्जाम्पल सोचिए, कैसे काउंटर एग्जाम्पल सोचते हैं कि ए और बी ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, जब ए बी की फॉर्मेट में लिया जाए तो रिलेशन को सेटिस्फाई करें, बट जब बी ए की फॉर्मेट में लिया जाए तो रिलेशन को सेटिस्फाई ना करें। और ये सिंपल है, आप लेट करके सोच के देखिए, आप सोचिए ए एज 2 एंड बी एज 3, अब चेक करो, देयरफॉर and 2 is lesser than equals to 3, therefore what, therefore 2 comma 3 belong to R, right, 2 comma 3 belongs to R। अब सोच के देखो, 2 अगर 3 से छोटा है, बट क्या 3 is lesser than equal to 2? No, therefore 3 comma 2 does not belongs to R। अब सोचिए 2 comma 3 belongs to R, but 3 comma 2 does not belong to R. So it means what? The relation should be what? Non-symmetric. Therefore, relation is not symmetric. Now, the last check is about its transitive nature. And I need to prove in this question, I need to prove it is transitive in nature. So, again, for transitive, yes please. For transitive कैसे करते थे, let A comma B belong to R, B comma C belongs to R, then होना क्या चाहिए, A comma C belongs to R होना चाहिए। तो अब क्या करना है, मुझे ये ट्रांजिटिव प्रूव करना है, राइट। तो I can't give an proof by any given example. The statement, if the statement has to be proved yes, then it should be general, right? तो अब इसको जनरल में कैसे प्रूव करते हैं, देखते हैं। Let for A comma B belong to R, होना क्या चाहिए, A comma B का ऑर्डर पेयर रिलेशन में कब आता है, when A is lesser than equal to B, therefore A should be lesser than equal to B। अब सेम मैंने ऐसे सोचिए, for B comma C belong to R, B should be lesser than equal to C। अब यहां से अब आपको कंक्लूजन क्या करना है, A comma C belong to R होना चाहिए। A comma C belong to R होने के लिए यानी कि I need to prove that A should be lesser than equal to C। क्या यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, yes it is, A is lesser than equal to B and B is lesser than equal to C। तो इसका लॉजिकली मतलब तो यही बन के आना, A is lesser than equal to B and B is lesser than equal to C। That means what, A is either lesser or equal to C। If A is either lesser or equal to C, it conclude what, A comma C belong to R। A comma C belong to R। If A comma C belongs to R, it means the relation is what, transitive in nature। और यही हमें प्रूव करके बताना था कि दिस क्वेश्चन हैव अ ट्रांजिटिव नेचर, राइट। सो
That was question number 4. Now question number 6. Show that relation R in a set capital A containing 1 to 3 as R 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. यानी कि we have a relation which is on set A containing 1 to 3 and the relation contains only two ordered pairs 1, 2 and 2, 1. We need to prove that this relation is symmetric but neither reflexive nor transitive. चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का चेक लगा रहे हैं. हाँ जी, ये रिलेशन किस पे था पहले मैं मेंशन कर देता हूं. रिलेशन वाज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. दैट इज, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, रिलेशन वाज सेट कंटेनिंग 1 to 3 टू सेट कंटेनिंग 1 to 3. अब सोचिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? when all the elements of set A are related to itself. तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि इस रिलेशन में 1 1 से रिलेट होना चाहिए था, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए था और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए था. कैसा है? इज 1, 1 belong to R? Mention ही नहीं. 2, 2 belongs to R? No. 3, 3 belongs to R? No. So it means what? As 1 1 2 2 3 3 का ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो बस as 1, 1 does not belongs to R, therefore not reflexive. Point over here, even one counter example is sufficient. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो ये रहा हमारा, हमने एक काउंटर एग्जांपल दे दिया. अदरवाइज तो एग्जांपल और भी थे काउंटर एग्जांपल. 2 2 doesn't belongs to R, 3 3 doesn't belongs to R. So by giving only one counter example, we have proved that the relation is not reflexive. Now, for symmetric nature, over here we need to prove it is symmetric. Okay, for symmetric, yes please. For symmetric कैसे करते थे? Let A, B belongs to R, then होना क्या चाहिए? B, A belongs to R. अगर ये सेटिस्फाई होता है then the relation is symmetric in nature. अब सोच के देखिए, whenever AB belongs to R, for symmetric, whenever AB belongs to R, then B, A should belongs to R. यहां पे 1 2 है, it means 1 is related to 2. Now चेक करिए क्या 2 related to 1 है? बिल्कुल है, right? So as 1, 2 belongs to R, then 2, 1 does also belongs to R, therefore the relation is symmetric. बस as 1, 2 belongs to R, therefore 2, 1 also belongs to R, therefore the relation is symmetric in nature. I hope आपको याद है, symmetric में हमने ये तो कहा था whenever A is related to B, तो B should also related to A. तो जब 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी तो 1 से रिलेटेड है, तो रिलेशन सिमेट्रिक हुआ. अब ट्रांजिटिव, यस प्लीज. फॉर ट्रांजिटिव, लेट क्या होता है? AB belong to R, BC belong to R, then what should happen? A, C should also belong to R, right? Right now, in this particular question, I have to prove that the relation is not transitive. तो क्या है नो का मेथड? क्या है? कोई एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देखो यार. 1 is related to 2. If I consider A as 1, B as 2, देखो एक प्लीज. 1, 2 belongs to R, right? Now B तो मैं कंसीडर कर रहा हूं 2 और C को अगर मैं 1 फिर से कंसीडर करूं, ये कंसीडर किया जा सकता है. तो 2, 1 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? अब सोचिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1. फॉर ट्रांजिटिव होना क्या चाहिए? 1 शुड आल्सो रिलेट टू 1. क्यों? A B, B C, then A should relate to C.
but 1 comma 1 does not belongs to R. 1 comma 1 does not belongs to R. Therefore, the relation is what? Not transitive. So we find out that the relation is non-transitive, or that we need to prove, right? Okay. Question number 9 now. Show that each of the relation are in the set A, x belongs to integer, where x lying between 0 and 12 included, given by R a comma b such that mod of a minus b the multiple of 4 is an equivalence relation. Means what? There are in this particular question set A is given. क्या given है set A के अंदर? Integers which are lying between 0 to 12. First relation prove करना है equivalence, second relation क्या prove करना है equivalence, right? It means in this question you have two parts. So starting with the first part, our relation is from set A to A. I hope you're clear कि set A में क्या आ रहे हैं integers 0 to 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, right? अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये रिलेशन a कॉमा b का इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कब आ रहा है? जब a माइनस b का मॉड क्या हो मल्टीपल ऑफ 4. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो लेट्स सपोज चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव ओके सॉरी मैं यहाँ पे r मेंशन कर दूं पहले. r क्या है? a कॉमा b, a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 ये रिलेशन गिवन है, राइट? चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा a बिलोंग टू r, दैट इज होना क्या चाहिए? a माइनस a का मॉड, a माइनस a का मॉड क्या हुआ? 0 इज मल्टीपल ऑफ 4. 0 is multiple of 4 is true. तो होता ही है. 0 is a multiple of every number. Therefore, relation is reflexive. So, reflexive prove हो गया. अब for symmetric चेक करते हैं. Yes, please. For symmetric क्या करते थे हम? Let a comma b belong to R. That is इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कब आ रहा है? जब a माइनस b का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4. इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इसका मतलब मैं कुछ ये भी तो मान सकता हूं कि a माइनस b का मॉड इक्वल टू 4k where k belongs to natural number, राइट? अब सोचिए सिमेट्रिक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अगर ए बी का ऑर्डर पेयर आता है तो क्या होना चाहिए? बी ए का भी ऑर्डर पेयर आना चाहिए. अब जरा इसी को आगे फर्दर सोच के देखिए. ए माइनस बी का मॉड अगर 4k है तो बी माइनस ए का मॉड, सोचिए आपने नेगेटिव नंबर कॉमन ले लिया, मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव होगा ना, तो बी माइनस ए का मॉड भी तो क्या होगा? 4k विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा. अगर b माइनस ए का मॉड भी 4 का मल्टीपल है तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? b कॉमा a बिलोंग टू r. अगर b कॉमा a बिलोंग टू r है तो इससे कंक्लूजन क्या आएगा? देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक इन नेचर. ये हमें प्रूव भी करना था, राइट? अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव नेचर. फॉर ट्रांजिटिव, यस प्लीज. ट्रांजिटिव में हम कैसे करते थे? लेट a कॉमा b बिलोंग टू r, b कॉमा c बिलोंग टू r, देन a कॉमा c बिलोंग टू r प्रूव करके दिखाते थे. अब पहले लेकिन ये सोच के देखिए, अगर मैंने a कॉमा b बिलोंग टू r कंसीडर किया है तो इसका मतलब क्या होगा? a माइनस b का मॉड इक्वल टू 4k, 4 का मल्टीपल. इसमें k क्या है? नेचुरल नंबर, राइट? Similarly, if I am considering b comma c belong to R, तो इसका मतलब ये बना कि b minus c का मॉड भी क्या है? 4 का मल्टीपल
बट दिस टाइम लेट्स से 4 इंटू लैम्डा है, तो लैम्डा भी एक नेचुरल नंबर है। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नेचर का है, तो अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नेचर का है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा a कॉमा सी बिलोंग टू आर, दैट इज, इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि a माइनस सी का मॉड भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 इंटू सम नेचुरल नंबर आपने लिख के दिखाना है यहाँ पे, 4 इंटू सम नेचुरल नंबर, ये आपका टारगेट है प्रूव करने के लिए। अब यानी कि a माइनस सी कैलकुलेट करना है, फिर उसका मॉड, तो आप क्या करें, पहले यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू निकाल लो। अगर इस नंबर का मॉड 4k है तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 4k। सिमिलरली b माइनस सी का मॉड 4k है तो b माइनस सी किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस सी के मॉड की, तो पहले यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, a कम्स आउट टू बी b प्लस माइनस 4k। c की वैल्यू क्या आएगी, c शिफ्टिंग दिस, सो हमें क्या कैलकुलेट करना था, a माइनस सी, तो चेक करिए b प्लस माइनस 4k माइनस b minus plus 4 lambda. Now, if I open the bracket, b plus minus 4k minus b plus minus 4 lambda. b get cancel out, so 4 ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, इनमें से 4 कॉमन आ गया, rather प्लस माइनस 4k प्लस लैम्डा या लैम्डा प्लस k। तो लॉजिकली आप सोच के देखिए तो क्या प्रूव हुआ, a माइनस सी इक्वल टू 4 इंटू, इसकी जगह मैं सिंपल म्यू लिख सकता हूं, लैम्डा प्लस के जगह, तो 4 इंटू म्यू। ऑब्वियसली अगर मैंने इसको 4 इंटू म्यू लिख लिया तो इसका मतलब ये बन के आया कि a माइनस सी का मॉड क्या हो जाएगा। अगर a माइनस सी 4 इंटू म्यू है, म्यू एक इंटीजर मान लेते हैं चलो, तो a माइनस सी का मॉड क्या होगा, 4 इंटू, लेट सपोज अगर ये म्यू एक इंटीजर था, सपोज म्यू एक इंटीजर था, तो a माइनस सी का मॉड क्या होगा, 4 इंटू एक्चुअली मॉड ऑफ म्यू। व्हाट इज मॉड ऑफ म्यू, म्यू अगर इंटीजर है तो मॉड ऑफ म्यू क्या होगा, मॉड ऑफ म्यू क्या हो सकता है, राइट, इट कुड बी अ होल नंबर। सो इट मींस व्हाट, a माइनस सी का मल्टीपल, a माइनस सी का मॉड क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब क्या बन गया, a कॉमा सी बिलोंग टू r, इट मींस व्हाट, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव इन नेचर। तो इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्यों इक्विवेलेंस प्रूव करना था ना, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। फिर हमने क्या प्रूव किया, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, और अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव किया, ट्रांजिटिव। तो फाइनली कंक्लूड करेंगे एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is equivalence relation। ये आपको प्रूव करके बताना था, राइट। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, आर ए कॉमा बी, इनके रिलेशन में ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर कब आ रहा है, जब ए और बी आपस में इक्वल हो। किस पे प्रूव करना है, सेट ऑफ सेट ऑफ ए क्या था, ए सेट पे प्रूव करना है, ए क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 to 12 इंक्लूडिंग 0 and 12। सो इस रिलेशन को मुझे इक्वलेंस प्रूव करके बताना है। तो देखते हैं पहले, ये आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। इस रिलेशन में कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर कब आ रहा है, व्हेन ए इक्वल्स टू बी। चलिए फिर से इसमें सेम मैनर, फॉर रिफ्लेक्सिव, यस प्लीज, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए था, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। अब सोच के देखिए इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कब आता है, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो, दैट इज ए इक्वल टू ए, विच इज ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। Therefore a comma a belong to R,
therefore relation is what? Reflexive in nature. Yes, for symmetric, let a comma b belong to R. इसका मतलब क्या बन के आया? A equals to B, right? सोचिए if A is equal to B, तो B would also be equal to A. अगर B equal to A है तो B comma A belong to R बोल सकते हैं ना? रीजन क्योंकि इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर आने की कंडीशन क्या है कि जब नंबर्स इक्वल हो तो B comma A belong to R, तो इट मींस व्हाट? द रिलेशन इज सिमेट्रिक. फाइनली अब आते हैं ट्रांजिटिव पे. यस, फॉर ट्रांजिटिव let a comma b belong to R, that is इसका मतलब हमने क्या माना? a equal to b. b comma c belong to R, इसका मतलब हमने क्या कंसीडर किया? b equal to c. अब सोच के देखो क्या मैं इसे इंक्लूड कर सकता हूँ equal to c? yes it is. therefore what? a comma c belong to R. तो अब सोचिए if ab belong to R, bc belong to R, then ac belongs to R आने का मतलब क्या बन के आया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव इन नेचर. अब ये सोचिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इन तीनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो दैट्स वी नीड टू प्रूव. सो आई होप ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, बट अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस. सो प्लीज नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ first exercise of relation function, right? Okay for today.